ہلو جی، السلام علیکم، ویلکم بیک ہو گیا آپ کا نیو ویڈیو کے اندر۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم جس ویڈیو پہ ریئیکشن دینے جا رہے ہیں وہ ہے 10 محرم امام حسین کا فل قصہ کربلا۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو دکھائیں گے کس طرح جزیر کی فوج نے امام حسین کے بیٹے کو قتل کیا اور اس کے بعد ان کو شہید کیا، اور اس کے بعد ان کے چچا کے بیٹے کو قتل کیا۔ تو ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ایک ساتھی اللہ کے دین پہ قربان ہوتا جاتا ہے۔ حضرت عباس کے جتنے بھی بھائی تھے وہ سب امام حسین کے قدموں میں قربان ہوتے ہیں۔ جناب عباس کے بیٹے قربان ہوتے ہیں۔ حضرت حبیب ابن مظاہر اپنی کمر میں لاٹھی کو باندھ دیتا ہے تاکہ وہ جھکی ہوئی کمر سیدھی ہو جائے، اور آپ میدان میں جا کے شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ جناب اون و محمد شہید ہو جاتے ہیں۔ بس جیسے ہی عزیز و اقارب شہید ہونے لگتے ہیں، اتنے میں شہزادہ قاسم امام حسین کی خدمت میں آ کے عرض کرتا ہے، اے میرے چچا، مجھے بھی اجازت دیں تاکہ میں بھی آپ کے قدموں میں قربان ہو جاؤں۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے میرے پیارے بھتیجے، تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے۔ بس قاسم آ کے اپنی ماں کو بتاتے ہیں۔ آپ کی ماں بی بی ام فروا فرماتی ہے، اے بیٹے، تمہارے بابا حسن نے یہ وصیت کی تھی، ایک وقت ایسا آئے گا جب پوری دنیا میرے بھائی حسین کے خلاف ہو جائے گی۔ اس وقت یہ تعویذ جو قاسم کے بازو پہ بندھا ہوا ہے اس کو کھولنا تاکہ میرا بھائی میرے بیٹے قاسم کو اجازت دے دے اور میرا بیٹا قاسم میرے بھائی حسین کے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ بس شہزادہ قاسم کو اجازت ملتی ہے، آپ میدان میں جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ شیر کی طرح لڑتے ہیں، مغرب کا لشکر مشرق کی طرف، مشرق کا لشکر مغرب کی طرف بھاگتا ہے۔ آپ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتے ہیں اور آپ کا جسم پامال ہو جاتا ہے۔ امام حسین جیسے ہی اپنی بھتیجے کی لاش پہ پہنچتے ہیں تو جیسے پھولوں کو چنا جاتا ہے ویسے ہی آپ نے اپنے بھتیجے کے جسم کے ٹکڑے ابا میں جمع کیے۔ بس جیسے ہی قاسم کی پامال لاش خیام میں پہنچتی ہے، بیبیاں روتی ہیں۔ اتنی دیر میں جناب عباس فرماتے ہیں، اے میرے مولا حسین، اب تمام ساتھی شہید ہو گئے ہیں، مجھے اجازت دے دیں۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے عباس، تو فوج کا سپہ سالار ہے، تجھے اجازت کیسے دوں؟ جناب عباس فرماتے ہیں، مولا، اب اس فوج میں سوائے اکبر اور آپ کے کوئی نہیں رہا۔ پھر آپ فرماتے ہیں، اے میرے مولا، بچے بہت پیاسے ہیں، 3 دن مسلسل پیاسے رہنے کی وجہ سے اب بچوں سے پیاس برداشت نہیں ہوتی اور مجھ سے ان کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، مجھے حکم دے میں دریا سے پانی لے کے آؤں۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے عباس، جا اپنی بہن زینب کے پاس، اگر زینب اجازت دے دے تو پھر نہر فرات چلے جانا۔ جناب عباس بی بی زینب سے اجازت لے کے میدان میں آتے ہیں اور شیر کی طرح حملہ کر کے دریائے فرات تک آ پہنچتے ہیں۔ مشک میں پانی بھر کے بس واپس پلٹ ہی رہے تھے، اتنی دیر میں عمر بن سعد کہتا ہے، دیکھتے کیا ہو، اگر پانی حسین کے خیام تک پہنچا تو ان کو مات دینا بہت مشکل ہے۔ عباس کو گھیر لو اور دور دور سے تیر چلاؤ، وار کرو تاکہ عباس خیمے تک پانی نہ پہنچا سکے۔ بس جناب عباس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو یہ پانی بی بی سکینہ اور امام حسین کے بچوں تک پہنچے۔ ظالم تیروں کی بارش کرتے رہتے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک ظالم چھپ کے جناب عباس پہ وار کرتا ہے کہ آپ کا ایک بازو قلم ہو جاتا ہے۔ آپ علم اور مشق دوسرے بازو میں سنبھالتے ہیں۔ جب دوسرا بازو بھی شہید ہو جاتا ہے تو آپ علم اور مشق کو اپنے دانتوں میں سنبھال کے تیز تیز خیام کی طرف بڑھتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا آپ پہ اتنی تیروں کی بارش ہوتی ہے کہ آپ کا پورا جسم تیروں سے ڈھکنے لگتا ہے، اور ایک تیر آپ کی آنکھ میں لگتا ہے اور ایک تیر اس مشق کو لگتا ہے جس میں جناب عباس نے بی بی سکینہ اور بچوں کے لیے پانی جمع کیا تھا۔ بس جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ مشق سے پانی بہنا شروع ہو گیا ہے، آپ جھک کے اپنی آنکھ سے تیر نکالنا چاہتے ہیں۔ اتنی دیر میں ظالم پیچھے سے وار کرتا ہے اور آپ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، اے میرے آقا حسین، میری مدد کریں۔ امام حسین جناب عباس کی لاش پہ آتے ہیں۔ آپ وصیت کرتے ہیں کہ اے میرے مولا، میری لاش کو خیام میں نہ لے جانا، کیونکہ صبح سے لے کے اب تک آپ نے بہت لاشیں اٹھائی ہیں اور میں بچوں سے شرمسار ہوں کہ میں نے پانی سکینہ اور اصغر تک نہیں پہنچایا۔ بس مولا حسین خالی مشق اور علم
लेके ख़याम में आते हैं। बच्चे दूर से जब अलम को देखें तो उन्हें लगा शायद अब्बास चाचा आ रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि खाली मश्क है और खून से भरा हुआ अलम इमाम हुसैन लेके आ रहे हैं, और चचा इमाम हुसैन के साथ नहीं। बस बच्चे रोना शुरू करते हैं। इमाम हुसैन बच्चों को दिलासा दे के कहते हैं कि तुम्हारी प्यास को रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। मेरे नाना के दीन को बचाने के लिए ऐ मेरे बच्चों, तुम्हारा प्यासा रहना ज़रूरी है। इतनी देर में जनाब अली अकबर फरमाते हैं, बाबा अब मुझे भी इजाज़त दें। इमाम हुसैन शबी रसूल अली अकबर का माथा चूमते हैं। आप अपनी माँ और बहनों से इजाज़त लेके मैदान में आते हैं और खुतबा देते हैं, ऐ लोगों देखो, मैं तुम्हारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम शक्ल हूँ। मैं वो बेटा हूँ जिसको मेरे बाबा हुसैन ने दुआ मांग के अल्लाह से मांगा था कि ऐ अल्लाह मुझे ऐसा बेटा दे दे जो तेरे रसूल की सूरत हो। ऐ लोगो, हम आले मोहम्मद हैं, क्यों हम पे सितम कर रहे हो? हमारा रास्ता क्यों रोका है? हमें छोड़ो, हम कहीं दूर चले जाएंगे। जालिम कहते हैं, अकबर की बात न सुनो, इसको शहीद कर दो। तारीख ने लिखा, सैकड़ों यजीद के फौज के सिपाही अली अकबर पे हमला करते हैं। देर तक आप लड़ते रहते हैं। फिर आखिर एक जालिम अली अकबर के सीने में बर्छी मारता है और हंस के ये कहता है कि अब देखते हैं कि बूढ़ा बाप इस जवान बेटे की लाश से ये बर्छी कैसे निकालता है। और ये कह के बर्छी पीछे से तोड़ देता है। बस अली अकबर घोड़े की जी से जमीन पे आते हैं और आवाज देते हैं, बाबा मेरी मदद करें। इमाम हुसैन कभी उठते हैं कभी गिरते हैं। तारीख ने लिखा, जैसे कोई बच्चा अपने घुटनों के सहारे चलता है, वैसे ही आप आके अपने बेटे की लाश पे पहुंचते हैं और आवाज बुलंद करते हैं, ऐ अल्लाह मैंने इस्लाम के लिए अपना अकबर भी कुर्बान कर दिया। आप देखें कि अली अकबर का एक हाथ आपके सीने पर है। आप पूछते हैं, ऐ मेरे बेटे क्या कोई तकलीफ है? जनाब अकबर फरमाते हैं, बाबा एक जालिम ने मेरे सीने में बर्छी मारी और कहता गया, अब देखते हैं ये बूढ़ा बाप अपने बेटे के सीने से ये बर्छी कैसे निकालता है। बस इमाम हुसैन अली अकबर का हाथ सीने से हटाते हैं और एक हाथ अपना ज़मीनी करबला पे रखते हैं, एक हाथ से बर्छी को पकड़ते हैं और कहते हैं, ऐ दादा इब्राहिम देख मैं अपना इस्माइल कैसे ज़िबा करता हूँ। जैसे ही खींचते हैं तो अली अकबर इमाम हुसैन की गोद में तड़पने लगता है। आप कहते हैं, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे की कुर्बानी कबूल करना। बस अली अकबर की लाश को उठाए ख़याम में आते हैं और बीबी उम्मे लैला और बीबी ज़ैनब से कहते हैं, मेरे बेटे की कुर्बानी कबूल हो गई। फिर आप मैदान में आके हुज्जत तमाम करते हैं और कहते हैं, ऐ मेरे नाना की उम्मत, मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हूँ और इन ख़याम में तुम्हारे रसूल की बेटियाँ हैं। हमने 3 दिन से पानी नहीं पिया, हमारा क्या कसूर है? वो सब कहते हैं, तुम्हारा ये कसूर है कि तुम अली के बेटे हो। यहाँ सब अली की औलाद से बदला लेने आए हैं। इमाम हुसैन फरियाद बुलंद करते हैं कि हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई मुझ गरीब की मदद करने वाला? तमाम लोग हंसते रहते हैं, लेकिन ख़याम में एक झोले से शहजादा खुद को गिरा देता है और आवाज़ बुलंद करता है, ऐ मेरे मौला अभी मैं जिंदा हूँ। जब रोने की आवाज़ इमाम हुसैन के कानों तक आ पहुँचती है, आप खैमे में आते हैं और कहते हैं कि ऐ बीबियों, अभी तुम्हारा वारिस जिंदा है, क्यों इतनी ज़ोर से रो रही हो? बीबियाँ कहती हैं, जैसे ही आपने हल मिन नासिर यंसुरना की सदा दी, ये बच्चा तब से मुसलसल तड़प रहा है। इमाम हुसैन अली असगर को सीने से लगाते हैं और उस 6 माह के बच्चे को मैदान में ले आते हैं और कहते हैं, ऐ जालिमों, अगर तुम्हारी जंग है तो मुझसे है। इस 6 माह के बच्चे ने तुम्हारा क्या कसूर किया है? अरे 3 दिन मुसलसल प्यासा रहने की वजह से इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, बस थोड़ा सा इसको पानी पिला दो। फौजे यजीद हंसती जाती है और कहती है, ऐ हुसैन, अगर बच्चा इतना ही प्यासा है तो ऐसे कह दो कि खुद हमसे पानी मांगे। इनके पानी की फुल पाबंदी की पानी नहीं किया है। ऐ मेरे बेटे, अपने नाना क़यामत वाले दिन निकाला साफ करे। असगर फौज की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, ऐ मेरे नाना रसूल अल्लाह की उम्मतियों, मैं तुम्हारे रसूल का बच्चा हूँ और 3 दिन का प्यासा हूँ, मुझे थोड़ा पानी दे दो। अली असगर का वो तड़पना और आपके अल्फाज में वो दर्द सुन के फौजी यजीद हिल जाती है। इतनी देर में उमर बिन साद कहता है कि हुरमला देख क्या रहा है, ये फौज पूरी बागी हो जाएगी, जल्दी निशाना ले और उस बच्चे का काम तमाम कर। बस वो हुरमला
3 नोकों वाला तीर निकालता है। तारीख ने लिखा वो तीर इतना वजनी था कि अली असगर को चीर के इमाम हुसैन के बाजू पे लगता है। अली असगर मुस्कुराते रहते हैं और आपके जिस्म से खून बहता जाता है। इमाम हुसैन अपने बच्चे को शहीद होता हुआ देख के चाहते हैं कि ये खून आसमान के हवाले करें। आसमान तड़प के कहता है, ऐ नवासाए रसूल, हम क़यामत तक पानी नहीं बरसाएंगे। आप चाहते हैं खून को ज़मीन के हवाले करें। ज़मीन रो के कहती है, ऐ नवासाए रसूल, हम क़यामत तक अनाज नहीं उगलेंगे। आपने बच्चे के खून को अपने चेहरे पे मल लिया और ख़याम में आके बीबी रुबाब को असगर देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे असगर की कुर्बानी कबूल हो गई। बस फिर फटे पुराने कपड़े पहन के अपने बेटे सज्जाद के खेमे में आते हैं, जो उस वक्त बिस्तर बीमारी पे होता है। आप फरमाते हैं, ऐ सज्जाद, अपने बाप का आखिरी सलाम कबूल कर। इमाम सज्जाद चाहते हैं कि मुझे भी इजाज़त मिले मैदान में जाने की। इमाम हुसैन फरमाते हैं, सज्जाद, तुम्हारा इम्तिहान इतना आसान नहीं बेटा, हमें शहीद हो लेने दो, उसके बाद तुम्हें बेटियों और बहनों के साथ कैदी होना है और कूफा और शाम के बाजारों में पत्थर खाने हैं। फिर तमाम बीबियों से अलविदा कह के मैदान में आते हैं। तारीख ने लिखा, आपने खुतबा दिया और उस खुतबे में ये फरमाया, ऐ जालिमों, इस लश्कर में काफ़ी ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि मेरे नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने कंधों पे उठा के घुमाया करते थे, मुझे अपनी ज़बान चुसाया करते थे और ये कहते थे कि हुसैन व मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। उमर बिन साद और शिमर ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं और कहते हैं, हुसैन की बात न सुनो और हमला कर दो। तारीख ने लिखा, सैकड़ों सिपाही इमाम हुसैन पे वार करते हैं। इमाम हुसैन सबको फिन्नार करते हैं। फिर हजारों का लश्कर एक साथ हमला करता है। इमाम हुसैन उनको भी फिन्नार करते हैं। बस इतनी देर में आवाज आती है, हुसैन पे एक साथ हमला करो। बस एक तरफ रसूल अल्लाह का नवासा जो 3 दिन का भूखा प्यासा है और दूसरी तरफ 9 लाख का लश्कर। इमाम हुसैन शेर की तरह ऐसे हमला करते हैं कि फौज भागना शुरू कर देती है। कोई दरियाए फरात की तरफ भागता है तो कोई कूफे की तरफ वापस पलट जाता है। उमर बिन साद कहता है, मैंने खुद अली से सुना कि मेरे तमाम बेटों में से सबसे अच्छी जंग हुसैन लड़ता है। ऐ लोगों, हुसैन को मात देना नामुमकिन है, बस दूर चले जाओ और हुसैन को तीर मारो और कुछ सिपाही जाके खयाम को आग लगा दें। जब हुसैन खयाम की तरफ जाए तो तुम तीर मारना और जब हुसैन तुम्हारी तरफ आए तो तुम खयाम की तरफ पलटना। बस सिपाही दूर जाके इमाम हुसैन को तीर मारना शुरू करते हैं। तारीख ने लिखा, कोई नेजा मारता है, कोई भाला फेंकता है, कोई तीर मारता है, कोई तलवार मारता है। जिसके पास मारने के लिए कुछ नहीं होता वो करबला की गर्म जमीन से पत्थर उठा के इमाम हुसैन को मारता है और वहाँ खयाम को आग लगने की सूरत में बीबियों की आवाज़ें बुलंद होती हैं। इमाम हुसैन कभी खयाम की तरफ जाते हैं, कभी मैदान की तरफ आते हैं। बस आवाज़ गैब आने लगती है, ऐ हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राज़ी हो गया। इमाम हुसैन अपनी तलवार को रोक लेते हैं और फौज यजीद में से कोई जालिम इमाम हुसैन की पुश्त पे वार करता है। आप घोड़े की ज़ीर से ज़मीन पे आते हैं और सजदा शुक्र में चले जाते हैं। मुसलसल अल्लाह के दरबार में अर्ज़ करते हैं, ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मोहम्मद के इस नवासे को इस अजीम इम्तिहान के लिए चुना। बस वहाँ ख़याम चलते रहे और यहाँ आप अल्लाह का शुक्र करते रहे। इतनी देर में जालिम आगे बढ़ते हैं और इमाम हुसैन का सर काटना चाहते हैं। तारीख ने लिखा, जो भी इमाम हुसैन के करीब आए, इमाम हुसैन की आंखों में उनको रसूल अल्लाह का चेहरा नजर आए, वो दूर चला जाए। शिमिर कहता है, ये काम मुझसे ही होना है। बस वो नवासा रसूल का सर काट के नोके नेज़ा पे बुलंद करता है और इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक पे घोड़ों को दौड़ाया जाता है। आपकी लाश को पामाल कर दिया जाता है, आपके ख़याम को लूटा जाता है, आपकी मस्तूरात को बेच चादर करके कैदी बनाया जाता है, लेकिन आपका सर मुबारक। हमारी आज की वीडियो, इस वीडियो के अंदर मुकम्मल बयान किया गया है इमाम हुसैन का किस्सा, किस तरह उनको शहीद किया गया। आज ये जो 6 पिट रहे हैं, ये उनकी बदवाएँ के सदके ये हो रहा है। तो अपने आप को दुख देने से कौन सा ये ना कुरान में लिखा हुआ है अपने आप को ऐसे जुल्म से।
کیونکہ شہید کل بھی زندہ ہے اور آج بھی زندہ ہے اور یہ شہید پہ ماتم کرتے ہیں. تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.